मीठे बच्चे जैसे बाप गाइड है, जैसे बाप गाइड है, ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है? जो तुम बच्चे ही जानते हो, जो तुम बच्चे ही जानते हो। उत्तर, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं। बाबा कहते, हाँ, कुछ समय के लिए। लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकता। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। तो बाबा আজ আমাদের বলেছে মহাবাক্যে, আজকের হোমওয়ার্ক কি দিয়েছে? হ্যাঁ, বাবা আজকে আমাদের গাইড হয়ে এসেছে। তো ঠিক তেমনি আমাদেরও কি হতে হবে? গাইড হতে হবে এবং অন্যকে ঘরে যাওয়ার রাস্তা দেখাতে হবে।
মানে আমাদের অন্ধের লাঠি হতে হবে, তাই তো? প্রশ্নে বলেছে যে এই বানা বানায়া অনাদি ড্রামার রাজ কি, এবং এই রাজ আমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউই জানে না। এই রাজটা কি? উত্তরে বলেছে, কি বলেছে, যেটা আমরা ছাড়া মানে বাবার বাচ্চা ছাড়া আর কেউই জানে না, সেটা কি? যেরকম হদের অ্যাক্ট মধ্যে, সিনেমার মধ্যেই হোক নাটকের মধ্যেই হোক, যারা অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেস তাদের সাবস্টিটিউট আরেকজন থাকে, সব কিছুর সাবস্টিটিউট থাকে। কিন্তু এ বেহদের অনাদি ড্রামার মধ্যে আমার সাবস্টিটিউট কেউ থাকবে না, আমার পার্ট আমাকেই প্লে করতে হবে। তার জন্য বাবা বলছে এটার মধ্যে কেউ অ্যাড হতেও পারে না বা এটা থেকে কেউ সরেও যেতে পারবে না, এবং এটা থেকে কেউ মুক্তিও পাবে না। কেউ বলে যে আমি একেবারে মুক্তি চাই, কিন্তু এই দুনিয়া থেকে কেউ মুক্তি পাবে না। হয়তো এই শরীর থেকে কেউ মুক্তি পাবে, কিন্তু এই দুনিয়াতে সে ঘুরে ফিরে তাকে আসতেই হবে। लेकिन पार्ट से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकता है। একদম যে সে পার্ট থেকে আলাদা হয়ে যাবে, একেবারে ফিক্সড হয়ে পরমধামে বসে যাবে, এরকম পার্ট এখনও বাবা কাউকে দেয়নি। তার জন্য বাবা যে এই রাজটা বাবার বাচ্চা ছাড়া আদার্স কেউ জানে না। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, यह तो जानते हो कि भोलानाथ किसको कहा जाता है? कौन है वो? तुम संगमयोगी बच्चे ही जान सकते हो, कलियुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंतों का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। যখন আমরা প্রত্যেকে অজ্ঞানী ছিলাম সেদিন, মিন্স যেদিন আমরা কোর্স করে নিই, কোর্স করার 10 মিনিট আগেও আমরা কিছু জানতাম না, কিছু চিনতাম না, কিছু বুঝতাম না। কিন্তু আজকের দিনের সাথে যদি ওই দিনটাকে মিলানো হয় তাহলে অনেকটাই পার্থক্য লাগে, ঠিক না? তো বাবা বলছে কি তুমিও তো একদিন তাদের মতোই ছিলে। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत को क्या बनाते बाबा? स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ, जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें क्या नहीं हो सकता? और क्या नहीं हो सकता? मोक्ष नहीं मिल सकता। और क्या नहीं हो सकता? और एक पॉइंट, दोनोटा হয়ে গেছে আর একটা লাগবে। আর ড্রামার মধ্যে একটার চেঞ্জ হবে না, তারপর বলেছেন মুক্তি পাবে না। আরেকটা পয়েন্ট বলেছে বাবা, হ্যাঁ হ্যাঁ, না কম हो सकता है। এরকম হয় না অনেক সময় যে আমরা প্রোগ্রাম সেট করে ফেলি, অতজন মিলে আমরা একটা কাজ করব, অতজন মিলে আমরা একটা নাটক করব। এরকম হয়ে যায় যে যেই লোকটাকে আমরা নাটকের মধ্যে পার্টিসিপেট করেছি, কিন্তু ওই লোকটাই হয়তো বা কোনো একটা ইমার্জেন্সি কেসে ছুটে চলে গেছে, ও নেই পার্টের মধ্যে। এটা হতে পারে, এটা লৌকিক দুনিয়ার মধ্যে থাকতেই পারে। কিন্তু বাবা বলছে যে বেহদের ড্রামার মধ্যে এরকম কোনো কিছুই হবে না। তার জন্য বাবা বলছে যে সभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, मोक्ष को पा नहीं सकते हैं जो जो जिस धर्म का है, फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बौद्धि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करे हम स्वर्ग में जाए, परंतु শুধু কি বৌদ্ধ বা খ্রিস্টানের জন্য বলেছে? যত যত ধর্ম স্থাপক আছে তারা যদি চায়ও যে আমরা স্বর্গে যাব, কিন্তু পারবে কি? মানে মানতেছে
কেন পারবে না? কেন যেতে পারবে না? तो क्यों नहीं जा सकते? जब उनका धर्म स्थापक आता है तभी उनका पार्ट है, ওনার পার্ট অতটুকু। দ্রাপর যুগে আসবে, এসে ওনারা ধর্ম স্থাপন করে চলে যাবে। আবার যখন দ্রাপর যুগ আসবে আবারও এই পার্টে করবে, বাট ওনারা এখন ধর্ম স্থাপন করে কি করেছে, এখন কিন্তু এখানে আমাদের মাঝে কোথাও না কোথাও আছে। বাবা বলে না ক্রিশ্চিয়ান যে ক্রাইস্ট এখনও কিন্তু কোথাও না কোথাও আছে, ঠিক না? তো বাবা বলছে তার জন্য তাদের যে ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্মের লোকেরা প্রত্যেক সময় গরিবদেরকে, গরিব বাচ্চা বাচ্চাদেরকে খাইয়েই থাকে, ভরণ পোষণ করে থাকে, সবসময় এদেরকে খাতির যত্ন করে থাকে, কারণ তাদের বিশ্বাস যে আমাদের ক্রাইস্ট তাদের মধ্যে কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে। তো বাবা মুরলিতে বলে যে ক্রাইস্ট হয়েছে, তার আত্মা এখন গরিবের পার্ট প্লে করছে। तो बाबा बोलते हैं धर्मस्थापक आता है तो उनका पार्ट ही है धर्म स्थापन करना। यहाँ तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सारी दुनिया के मनुष्यों मात्र इस समय क्या है, और क्या है, और पतित, और क्या है হ্যাঁ হচ্ছে সবারটা হচ্ছে, মানে এখন এই সময়ে সারা দুনিয়ার লোক কিরকম অবস্থায় আছে? भिखारी, नास्तिक है, अर्थात बेहद के बाप को न जानने वाले हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना, यह नाटकशाला है, मनुष्यों की ही है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पार्ट बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं बुद्धो निर्वाण गया। अब बुद्धों का शरीर तो नहीं गया, गया कौन? आत्मा गया। कहाँ गया? क्या क्या गया? हाँ क्या बताओ, गया क्या? कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया। तो कहाँ है वो? यहाँ पे है। तो बाबा ने कहा अब बुद्धों का शरीर तो नहीं गया। तो ওনারা বলে বুদ্ধ নির্বাণ ধাম গেছে, কিন্তু বাবা বলছে যে বুদ্ধের শরীর তো এখানেই ছিল, কিন্তু গেছে কে? আত্মা গেছে ওদের মতে। परंतु बाप समझाते हैं जाता कोई भी नहीं है, परम धामे কেউ যেতে পারবে না, এখানেই এদের ঘুরে ফিরে एक्ट करते হবে। नाटक से निकल ही नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते, क्योंकि यह बना बनाया क्या है? ड्रामा है। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, इसीलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं, बाकी मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं है। तुम तो जानते हो हम क्या है सभी। तुम तो जानो, আমরা কি জানি? আর আভামাতা যে আমরা কি জানি গো? কি জানি? বাবা বলছে তোমরা জানো, সেটা কি? আজকে মৌলি অনুসারে আমরা কি জানি? আর রেডিওটা একটু বন্ধ, বাকিদের বলতে দেন, বলেন আমরা কি জানি? तुम जानते हो हम, पी দিয়ে শুরু হবে, বলে দেব। तुम जानते हो हम सभी हैं, और है एकदम ठीक, हम सभी पार्टधारी है इस ड्रामा में। हम कब आए हैं, फिर कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, यह किसी को भी पता नहीं है, ठीक ना? তার জন্য আমরা পার্টধারী, এটা আমরা কি করেছি? জেনে ফেলেছি, দুনিয়ার লোক এটা এখনও জানেনি। তার জন্য আমাদের সাথে যদি এখন কেউ খারাপ ব্যবহারও করে, কিছু গালিও দেয়,
আমাদেরকে কেউ ভুলও বুঝে কষ্টও দেয়, এগুলি নেব আমরা? আর নেব না, কারণ আমরা জানি যে কাউকে এই ড্রামাতে পজিটিভ রোল দেওয়া হয়েছে, কাউকে নেগেটিভ রোল। তো আমাকে তো বাবা হিরো হিরোইনের পার্ট দিয়েছে, তাহলে আমি কেন এদের থেকে দুঃখ নেব? এরাও তো আজকের দিনে আমাকে দুঃখটা দেবে, এই কথাটা বলবে, এদেরও তো ড্রামাতে পার্ট ফিক্স আছে, তার জন্য ওই বেচারারও কোনো দোষ নেই। তো বাবা জানোয়ার তো নেই জানেঙ্গে না, ড্রামার রাজ তো আর জানোয়ার জানবে না, জানবে কে? আমরাই জানবো। तो मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स है, पार्टधारी है। यह कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं रहती है, उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता है। वो तो निराकारी दुनिया है, इसमें कोई खेल पाल नहीं है, एक्ट नहीं है। कहा खेल पाल भी नहीं हो सकता, एक्ट भी नहीं हो सकता, मतलब एक्टिविटी नहीं होगा वहाँ। कहा हाँ परम धाम सत्य जगह আর কি কোন দুনিয়াতে মানে খেলাধুলা আনন্দ ফুর্তি কিছু হবে না, মিস অ্যাক্টিভিটি থাকবে না সেখানে। परम धाम। तो राइट आंसर क्या होगा? सतयुग या परम धाम? उसमें कोई खेलपाल नहीं है, एक्ट नहीं है, क्योंकि वो तो निराकारी दुनिया है, मतलब परम धाम। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं तो पार्ट बचाने, जो फिर रिपीट होता रहता है, प्रलय कभी होता ही नहीं है। शास्त्रों में दिखाती है, क्या दिखाते शास्त्रों में? महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए हैं, बाकी बचा कौन? মহাভারত লড়াইতে দেখানো হয়েছে যাদব কৌরব নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে শরীর ছেড়ে দিয়েছে, আর বেঁচে ছিল শুধু 5 पांडव। तो वो भी क्या होगा? पहाड़ों पर गल मरे, तो बाकी कुछ रहा नहीं है। इससे समझते प्रलय तो हो गई है। यह सब बातें बेठ बनाई है, फिर दिखाती है। क्या दिखाते? মানে এই যুদ্ধের পরে পাণ্ডবরা যখন শরীর ছেড়ে দেয় তারপর কি দেখায়? তারপর দেখায় समुद्रों में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता हुआ आया। वो कौन था? श्री कृष्ण। দেখেছিলেন আপনি? হ্যাঁ, আঙ্গুল চুষতে চুষতে এসেছিল যে। তো বাবা বলছে কি যে দেখানো হয়েছে এরকমটাই, যে সমুদ্রের মধ্যে পিপল পাতাতে অসত্য পাতাতে ভাসতে ভাসতে সে আসে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এরকমটা কোনো কিছুই হয়নি। পিপল পাতাটা দেখতে হলো ভারতের ম্যাপের মতো। আধ্যাত্মিক রহস্য বুঝিয়েছে যে ভারতেই সে জন্মগ্রহণ করে। তো ভক্তিতে এটারই দেখানো হয়েছে প্রতীক চিহ্ন হিসাবে পিপল পাতাটা। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वो सत सत करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। यह सभी भक्ति मार्ग के शास्त्रों। भक्तों का फल देने वाला कौन है? एक बाप। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर आएगी। यह ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कहते हैं हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को कुछ नहीं जानते। माने आमी ड्रामा करছি, আমি যে কোনো এক মানে নাটকের মধ্যে আমি আছি, তো আমি যে নাটকের মধ্যে পার্ট রোল করছি আমি কোনো স্ক্রিপ্টই জানি না, আমি কি নাটক করব, আমার নাটকের রোল কি দেওয়া হয়েছে, আমার নাটকটার কনসেপ্টটা কি, আমি কিছুই জানি না, নাটক করতে নেমে পড়লাম। তো বাবা সেটাই বলছে দুনিয়ার লোকে আমরা তো প্রত্যেকেই অনাদি বেহদের ড্রামাতে অ্যাক্টার, কিন্তু কেউ এই ড্রামার ডিউরেশন কেউ জানে না, ড্রামা সম্পর্কে কেউ এই জ্ঞান
নেই। নেই বলে আজকে সংসারে তো ঝগড়াঝাটি অশান্তি লড়াই হইচই। क्योंकि वो सब जानते नहीं इसलिए बेसमझ है। क्या है सभी? बेसमझ है। और क्या है सभी? समझदार। समझाने से भी समझते नहीं है। देखो बुझाले परे ओ क्यों बुझते जाए ना। तो 84 लाख समझने कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्षों दे देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा, हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। जथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। क्या होते हैं? সত্য যুগে সবাই কীরকম থাকবে? বিশ্বর মালিক থাকবে, মানে রাজা রানী থেকে শুরু করে প্রজা প্রত্যেকে সেরকম ফিলিংটাই থাকবে। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंतों को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं है। जिसकी भक्ति करनी होती है उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते हैं। ठीक করে কেউ কে জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনি যাকে পূজা করছেন আপনার যে আরাধ্য দেবতা ওনার বায়োডাটা কি, বায়োগ্রাফি কি, কিছুই ওনারা বলতে পারবেন না। তার জন্য বাবা বলছে যে तुम बच्चे अभी सब कुछ जान गए हो। আমরা প্রত্যেকের বায়োডাটা জানি। আমার লাইফেরও বায়োডাটা আমি নিজের বায়োডাটা নিজের বায়োগ্রাফি আমি জানি। तुम सब अभी बाप के बने हो। किसके बने सभी? और किसका बनना है? सिर्फ अभी हमें बाप मिला तो और कुछ भी नहीं चाहिए। बाप को बायोग्राफी का पता है? पूछा। এরকম তো নয় যে ভক্তির মতো পূজা করেই গেলাম সারা বছর, কাকে করলাম তাকেই আমি চিনি না। তো বাবা বলছে কি তুমি বাবা বাবা বললেই সারা বছর, কিন্তু বাবার পরিচয় দিকে তুমি থেকে গেলে তুমি বলতে লজ্জা পাচ্ছ, বলতে পারছ না, তার মানে কি তুমি বাবার সম্পর্কে কিছু তুমি বুঝোই নি। तो वो बाप है पतित पावन लिबरेटर गाइड। तुमको कहते हैं पांडव। तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो सबको रास्ता बताने के लिए। जथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है। बाप क्या है? तो हमें क्या बनना है? गाइड बनना है। किसकी गाइड बनना है? तुम आत्मा वो परमात्मा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद में भारत में बेहद का राज्य था, अब था अभी प्रेजेंट में है या नहीं है? सत्यजुग আছে কি এখন? तो देरी क्या ना बोलते हैं। अब तो नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद की बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं। बाप आकर शूद्रों से क्या बनाते? श्योर? आर यू श्योर? हाँ, शूद्र थे के ब्राह्मण, शूद्र থেকে ব্রাহ্মণ। শিওর তো? কি ব্রাহ্মণ তো হই নাকি? শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে যাব? বাণী মাতাজি বলেন তো ঠিক কি বলছে কিনা এনারা? ব্রাহ্মণ তো? যদি ভুল হয় তাহলে আবার কোর্স করাবো কিন্তু। तो बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञों में ब्राह्मण तो ज़रूर चाहिए। यह है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं। इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं।
अब यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होना है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में है तो बहुत मनुष्य, इसमें इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज़ काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंदा है, मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते, गरीब तो बेचारे गंद में हैं, झोपड़ियों में पड़े हैं। বস্তিতে থাকে না এরকম নোংরার মধ্যে থাকে। तो वो बच्चे अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, उनको दूसरी जगह दे वो ज़मीन फिर बेचते रहते हैं। এরকম শহরের মাঝামাঝি কোনো বস্তি এলাকা থাকলে পরে তখন কী করে গভর্নমেন্ট থেকে এগুলিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় বা ওদেরকে উঠিয়ে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, তখন মানে ধমক দিয়ে পরে উঠিয়ে দেওয়া যদি না উঠতে চায়। তো বাবা সেটাই বলছে, তখন উঠিয়ে দিয়ে তাদেরকে অন্য জায়গায় ট্রান্সফার করে তারপর এই জায়গাটাকে বেশি দামে বিক্রি করে ফেলে। नहीं उठते तो ज़बरदस्ती उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत है, जो सुखी है वो भी स्थायी सुखी नहीं है। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि यह काक विष्ठा समान सुख है। মানে বাবা বলছে যে এই দুনিয়াতে যারাই সুখী তারাও কি স্থায়ী সুখী নয়। श्री भगवानो बचो अब इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खुलना है ना। तो भक्तिते तो बोले जे मातारा हलो कि स्वर्गेर द्वार, मातारा हलो नरकेर द्वार। तो ज्ञानेते कि बोले माताराई स्वर्गेर द्वार खुलबे। माताओं पर कलश रखते हैं। कौन सा कलश? फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। परंतु तुम्हारी प्रवृत्ति मार्ग है, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो देवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो, बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं, तुम घोर अंधियारत से सोचने में आए हो। मनुष्य तो समझती है गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। जाएंगे नहीं ना, क्यों नहीं? गंगा स्नान करले पावन हो, किन्तु महाकुम्भते स्नान करले तो पावन हो जाए। हैं अब माता जी पावन हो जाए ना बुझी महाकुम्भ स्नान करले परे একটা ডুব দেওয়ার জন্য কত লোক ভিড় জমেছিল। তো বাবা বলছে গঙ্গা স্নান করনে সে আরও জলটাকে দূষিত করে এসেছে, ভালো জলটাকে সবাই মিলে গিয়ে। তো বলছে ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचरा पड़ता है। कहा फिर किचरा सारा खेती में चला जाता है। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं हैं, वहाँ तो अनाज ढेर की ढेर होता है, पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ता है। सत्य जगह मार्केटिंग करते शॉपिंग करते कि लागबे ना टाका लागबे, ठीक ना? এখন तो टाका लगे, प्रचुर टाका लगे, किन्तु सत्य जगह किसी लगबे ना। बाबा तो अनुभवी है ना, पहले कितना अनाज सस्ता था, अभी तो देखो। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य है, हर चीज़ सस्ती रहती है। तो बाप कहते मीठे बच्चे क्या बनना है? कुछ तो बनना है, क्या बनना है? और क्या बनना है? और মানে এখনো হতে হবে বাবার, মানে কমপ্লিট হয়নি, বেঁচে থাকুন। তারপর আর क्या बनना है এটা তো বলেই ফেলেছে। আর मीठा बनना है। अभी तुमको पतित से पावन बनना है। युक्ति तो बहुत सहज बताती है। युक्ति क्या है पावन बनने का? और अपने को
आत्मा समझो और बाप को মানে आत्मा নিজে অনুভব করো অন্য কি করব हाँ आत्मा में ही खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गए है मतलब যখন সোনাতে খাদ পড়ে এই সোনার কোনো দাম থাকে ভ্যালুলেস হয়ে যায় তখন তো বাবা বলছে আত্মারূপী সোনার মধ্যে খাদ পড়েছে তার জন্য সেটা ভ্যালুলেস হয়ে গেছে এখন বাবা সেটাকে ভ্যালুएबल बनाते এসেছে जो पारस बुद्धि थे वही अब क्या हो गए हैं पत्थर बुद्धि बने हैं तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थरनाथ से क्या बनने आए हैं पारसनाथ बनने आए हो बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते सो भी गोल्डन एजेड विश्व का यह है आयरन एजेड विश्व बाप बेट बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं तुम जानते हो यहाँ के इतने महल मड़िया आदि कोई काम में नहीं आएगा आएगा कुछ काम में अंत समय कुछ काम में नहीं आएगा आएगा कुछ तो आएगा क्या आएगा काम में মানে অন্তিম সময় সব তো ধরম ধরম করে পড়তে থাকবে বিল্ডিংগুলি ঠিক না ভূমিকম্প হবে ন্যাচারাল ক্যালামিটিস হবে আদি আদি তো ওই সময় তো যা আছে দুনিয়ার যত ফ্যাশনে দেখছি যত কিছুই দেখছি সবই তো আস্তে আস্তে ভাঙতে থাকবে কিন্তু বাবা বলছে ওই সময় কিছু আর কাজে আসবে না কিন্তু কি আসবে কাজে सब खत्म हो जाएगा यहाँ क्या रखा है থাকারই বা এখানে বা রাখারই বা এখানে কি আছে এই দুনিয়াতে সব কিছুই বিনাশ হয়ে যাবে কারণ দুনিয়াটাই হলো বিনাশী আর এই দুনিয়ার মধ্যে আছে শুধু বিনাশী দুনিয়ার মধ্যে আছে अविनाशी आत्मा और बाकी सब हलो विनाशी अमेरिका के पास कितना सोना है यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वो भी लेते रहते हैं ना माता रहते हैं कौन तुलसी माला गला दिए हाटे ठीक ना और स्वर्णेर हार आर क्यों दीते चाहे ना तो बाबा क्या बोलते क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता है कहाँ यहाँ करियो ही वहाँ हीरा होंगे इनको कहा जाता है आयरन एज भारत ही अविनाशी खंड है कभी विनाश नहीं होता है भारत है सबसे क्या और हाँ और और क्या है भारत है सबसे ऊंच ते ऊंच तो माताएं सारे विश्व का उद्धार करते क्योंकि शिव बाबा है सबसे ऊंचा तो जिसका जन्म इस भारत भूमि पे है उस भारत भूमि पर कुछ नहीं हो सकता है लेकिन हाँ ये तो चेंजेस होगा कुछ ना कुछ चेंजेस होगा लेकिन नेचुरल कैलामिटीज से होगा अदर्स कुछ नहीं होगा यहाँ तुम्हारे लिए ज़रूर नई दुनिया चाहिए पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए कितनी समझने की बातें हैं शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी करना है हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें वो पूरा करना है लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है बाबार হয়ে গেছি আমি যে জব করছি সেটাকে ছেড়ে দিয়ে একদম বাবার হয়ে যাব ও সেটাতে ডিসসার্ভিস হবে কিন্তু ও যদি এটা সবাই পারে ভক্তিতে তো সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে বনবাসে চলে যায় কিন্তু আমাদেরকে বনবাসে গেলে হবে না আমাদের এই সংসাররূপী জঙ্গলে থেকে মঙ্গল করে দেখাতে হবে তার জন্য বাবা বলছে যে शरीर निर्वाह तो धंधा आदि भी करना है छोड़ना कुछ भी नहीं है बाप कहते हैं सब कुछ करते हुए हाथ से काम करो और क्या करो मन ही मन उसको याद करो क्योंकि हमें बाबा कर्म योगी बनाया है भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ माशूक को याद करते आए हो कि हमको आकर शाम से गोरा बनाओ उनको मुसाफिर कहा जाता है तो सब मुसाफिर होना तुम्हारा घर वो है जहाँ सब आत्माएं रहती है हमारा घर कहाँ है तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो सब हिसाब किताब चुकता कर जाने वाले हो
फिर नए से तुम आएंगे, जितना याद में रहेंगे उतना। हाँ, क्या होगा? और बिकर मस्जिद बनेगा। और क्या होगा? और जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और उच्च पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत होता है के रे আপনাদের হয় না? मागो, माताओं को तो फुर्सत रहती है, ठीक है ना? माताদের তো সময় পায়, মাতারা ঘরের কাজ সেরে, ঘরের ডিউটি সেরে সময় পায়। কিন্তু ভাইরা তো হয়তো समय পেয়েও समय পায় না। কিন্তু বাবা বলছে যে মেলস को बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्र लगाती है। দেখেন আপনাদের উপর কত বড় কলঙ্ক দিচ্ছে বাবা। আপনাদের বুদ্ধি কোথায় থাকে সারাক্ষণ? বিজনেসটাকে আরও কী করে বাড়ানো যায়, ঠিক না? তো বাবা বলছে কি আরও কী করে বিস্তার করা যায়। কিন্তু মাতাদের এরকম বুদ্ধিতে চলে না, কোনো মতে ঘরটারে গুছাইতে এরা टीवी देखते बहे जाएगा। तो बाबा बोलছে কি इसीलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। किस पर रखा बाबा? तो यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा क्या है। जब शादीशुदा होता है ना तब क्या कहते हैं? माँ गो तो तुम्हारा ईश्वर है। पति तखन की हो जाए ईश्वर। किंतु এখন আর এইসব কেউ মানে না। तुम पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनके दासी हो। दासी है सभी। तो बाबा कहते अभी फिर बाप तो माताओं को दासी से क्या बनाते हैं? दुनियार लोके दासीगिरी करते करते उदासी হয়ে গেছে। এখন বাবা এসে মাতাদেরকে এবার মুক্তি দিয়েছে দাসীগিরি থেকে। এবার বলছে কি तुम कितना ऊंच बनते हो, तुम नारियां ही भारत का उद्धार करते हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कोई माताएं बाबा से पूछते हैं बाबा आवागमन से छूट सकते हैं। মানে এত পরিশ্রান্ত হয়ে যায় বা এরকম দুনিয়া থেকে বিরক্ত চলে আসে বা সংসার থেকে এরকম বিরক্ত চলে আসে, এরকম আসে না যে কখনো কখনো সিচুয়েশান এলে পরে কিছু কিছু লোকের এত সারাদিন পরিশ্রম করে পড়ার পরেও যদি কোনো কোনো সময় কিছু দুঃখটা না বুঝে, ইমোশনটা না বুঝে, এসে পাথর মেরে দিল কিছু একটা কথা দিয়ে বল দিয়ে, তখন একটু কষ্ট হয়ে যায়। আর তখনই বলে কি কখন যে আমি যাবো, ঠিক না? তো যদি বাবার বাচ্চা হয়ে থাকে তখন কি বলে, বাবা আমাকে এই দুনিয়া থেকে কবে তুমি মুক্তি দেবে, এরকম এটা কাজ করতে পারো যে ফিক্স আমাকে ওখানে রেখে দিও, আমাকে আর এই দুনিয়াতে পাঠিও না। তো বাবা कहते हैं हाँ कुछ समय के लिए, এরকমটা হবে যে তুমি আবাগমনের চক্রে আসবে না কিন্তু কিছুটা সময়ের জন্য। কখন? কিছু কিছু আত্মা আছে যে সত্যযুগ থেকে শুরু করে সঙ্গমের অন্ত পর্যন্ত, মানে পুরা ড্রামাতে তাদের পার্ট থাকে। আর কিছু কিছু আত্মা আছে কিছু কিছু সময়ে তাদের পার্ট থাকে। তো যেরকম খ্রিস্টান বা বুদ্ধিস্ট এরকম যে কোনো ধর্মের বা যত ধর্মস্থাপক আছে এনাদের তো পুরা জন্মে কোনো সত্যযুগও পার্ট নেই, সঙ্গম যুগও কোনো পার্ট নেই, ত্রেতা যুগে এদের পার্ট নেই। তো ওই টাইমে ওরা সত্য পরম ধামেই বসে থাকে। তার জন্য বাবা বলছে যে এই সময় অল্প একটু সময়ের জন্য ফিক্স হয়ে থাকতে পারে কিন্তু সব সময়ের জন্য পারবে না। तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पट बजाते हो, दूसरे जो है वो तो मुक्तिधाम में रहते हैं, उनका पार्ट ही तो थोड़ा है, वो तो स्वर्ग में तो जाने वाले नहीं है। आवागमन से मोक्ष किसी उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए हैं और यह गए हैं। ज्ञान आदि तो सुन न सके, सुनते वही जो शुरू से अंत तक पट बजाते हैं। बाबार এই জ্ঞানটা শোনার সুযোগ আমাদেরকে বাবা কখন দেবে? চান্স আমরা কখন পাই? যখন আমরা 84 জন্মের আত্মা যদি হয়ে থাকি তাহলে আমরা বাবার এই জ্ঞানটা শুনতে পারবো। এরকম অনেক আত্মা আছে বা আসবে, এখনও পরম ধাম এখনও ক্লিয়ার হয়নি, এখনও কিছু আত্মা আসবে যেগুলি আসবে, জন্ম নেবে, রাতারাতি আবার শরীর ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু ওই রকম পার্ট তো আর বাবা আমাদেরকে
দেয়নি, ওই রকম আত্মারা যে রাত্রে জন্ম হলো সকালবেলা উঠে শরীর ছেড়ে দিল। তো বাবা বলছে ওই রকম আত্মাদের তার ভাগ্য হয়নি যে বাবার জ্ঞানটা শোনার মতো। তো ওই জন্য বাবা বলছে যে কিন্তু আমাদের ভাগ্য কেন, কারণ আমরা 84 জন্মের আত্মা, তাই জন্য আমাদেরকে বাবা এই পার্ট দিয়েছে যে আমরা জ্ঞানটা উঠাতে পারি। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हम वहाँ ही बैठे रहें, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ड्रामा में नोंधा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे ज़रूर, बाकी सारा समय शांतिधाम रहते हैं। यह बेहद का ड्रामा है। यह कैसा ड्रामा है? बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादाओं को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परमधाम सीधे रास्ते से, फिर आएंगे हंसते हंसते शुकदम। पॉइंट्स क्या बताया बाबा? वॉल्यूमটা একটু বাড়ালো ভালো হবে। अंधों की लाठी बनना है और याद करना है और बोलें पारस बुद्धि बनना है और हाँ और और মানে মাতা जी बोलें এত ভলিউম কম, মানে ফ্যানের আওয়াজও কিছু শোনা যায় না, কাছে গেলে শোনা যাবে, বুঝতে পারছি না, একটু জোরে বলুন না। घर का रास्ता बताना है, ठीक है। तो बाबा क्या कहते हैं हम सुन लेते हैं। नंबर 1 धारणा, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। सेकेंड पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते, पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है। और सबको बाप की याद दिलाना है। आई रिपीट, शरीर निर्वाह अर्थों धंधा आदि सब कुछ करते, पति से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। वरदान है आज का, विशेषताओं के दान द्वारा विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। विशेषताओं का दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। डिटेल्स है, ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को
अपनी विशेषताओं का दान करना है। जो भी आपके सामने आए उसे आपसे बाप के स्नेहों का अनुभव हो। क्या अनुभव होना चाहिए? মানে আমার দ্বারা बाबार स्नेहर अनुभव जाते करते पारें। आपके चेहरे से बाप का चित्र, चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे। क्या क्या होना चाहिए? चेहरे से क्या होना चाहिए? चेहरे से हाँ बाप का चित्र देखना, और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे। आपकी विशेषताएं देखकर वो विशेष आत्मा बनने का प्रेरणा प्राप्त करें। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्योपन में भी और पुजारीपन में भी महान रहेंगे। स्लोगन है आज का, सदा आत्मा अभिमानी रहने वाली ही, सदा आत्मा अभिमानी रहने वाली ही सबसे बड़ा ज्ञानी है।